So the next practical from group B, 5th number practical, that is MongoDB aggregation and indexing. So aggregation and indexing, this both concept already you have studied in SQL also. As you know, indexing is used when you want to perform some faster queries, when you want the output of any query should come in a faster way. So that time indexing is applied on any of the column, which column is mostly used in a search queries. And aggregation are the different commands like max, mean, average, sum, count. So these are 5 different aggregate operators we have studied in SQL. So likewise, aggregation and indexing, both concept you can also use in a MongoDB. So let's see how the index is created. So first we'll start with the indexing. So indexing support the efficient execution of queries in MongoDB, means in a faster way. So there are different types of indexes which are available. The first one is single field index, second is compound index, multi-key index, geospatial index, text index, hash index. बहुत सारे अलग अलग टाइप के इंडेक्स होते हैं. सिंगल फील्ड मतलब आपने पूरे टेबल में जितने भी कॉलम्स है उसमें से सिर्फ एक कॉलम को इंडेक्स बनाया है. कंपाउंड मीन्स मल्टीपल कॉलम को मिला के आपने इंडेक्स बनाया. जैसे मल्टीपल कॉलम को मिला के आप कोई की बनाते हो, प्राइमरी की या कैंडिडेट की. सो लाइकवाइज यू कैन क्रिएट इंडेक्स बाय अप्लाइंग और बाय कंबाइनिंग द मल्टीपल कॉलम्स. देन थर्ड इज मल्टी की इंडेक्स. मल्टी की मीन्स ऐसा कॉलम जिसके वैल्यूज जो है वो एक से ज्यादा है. जैसे हॉबी एक फील्ड है, हॉबी में जो वैल्यूज आएगी वो की एंड वैल्यू में एक से ज्यादा वैल्यू रहती है हॉबी फील्ड के लिए. Geospatial means when your any column is where you are storing longitude and latitude, means location based search. So these are the different indexes which are available. There are different index properties. Already you have studied in theory itself. First is called as the TTL. TTL means time to live. How much period of time that index will be allotted. वो जैसे टाइम खत्म होगा इंडेक्स जो आपने क्रिएट किया था ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. सेकेंड इज यूनिक इंडेक्स. As you know, there is no primary key concept in MongoDB, means you cannot create your own primary key. By default, a underscore ID column is provided by MongoDB as a primary key. अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कोई कॉलम आपको बनाना है जिसमें कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं इंटर करना चाहिए स्टूडेंट्स ने या यूजर ने, okay, and you don't know how to create a primary key, the solution for that is create a index called as unique index on that column. जैसे ही किसी कॉलम को आप यूनिक इंडेक्स बना दोगे तो उसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज को वो इंटर नहीं करेगा. एंड थर्ड इज कॉल्ड एज द स्पार्स इंडेक्स. स्पार्स इंडेक्स मतलब अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें बहुत अलग अलग कोई कॉलम के लिए बहुत सारे वैल्यूज है, तो हर वैल्यू के लिए इंडेक्स ना बनाते हुए कुछ रेंजेस के ऊपर, मतलब कुछ वैल्यूज को छोड़ छोड़ के इंडेक्स क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है. सो इंडेक्स की साइज रिड्यूस करने के लिए स्पार्स इंडेक्स यूज किया जाता है. सो यू कैन क्रिएट एन इंडेक्स वेरी लाइक इजी कमांड इज देयर. वेरी फर्स्ट कमांड इज db डॉट कलेक्शन नेम डॉट क्रिएट इंडेक्स. देन की का नाम, और की के नाम के आगे आइदर यू कैन यूज 1 और -1. अगर 1 दिया मतलब असेंडिंग ऑर्डर का इंडेक्स बनेगा, -1 मतलब इंडेक्स डिसेंडिंग ऑर्डर का इंडेक्स. It will be created by MongoDB. Either you can use this command or you can also use this command for creating an index. So create index करने के लिए दो टाइप की कमांड है. One is by using create index. Second will be by using a ensure index. तो ensure index में same db dot collection name dot create index के बजाय खाली लिखना है ensure index. Rest everything is very similar. So here are some examples I have just added here how to create an index. Like if you want to create a single index, okay, तो यहाँ पे हमने लिख दिया db dot stud dot create index. जो भी कॉलम है जिसके ऊपर आपको इंडेक्स बनाना है, सपोज रोल नंबर के लिए बनाना है, नेम के लिए बनाना है, तो वैसे हमने यहाँ पे की लिया है जिप कोड और यहाँ पे मैंने बोल दिया 1.
मतलब जिप कोड ये कॉलम के ऊपर वो इंडेक्स बनाएगा, लेकिन इंडेक्स कैसे बनाएगा? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब छोटा वाला जिप कोड पहले, एंड जो जितना लार्ज होते जाएगा उसका इंडेक्स सबसे एंड में बनता जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर। सो दिस इज अ सिंगल। सिंगल मतलब क्यों? क्योंकि एक ही कॉलम के ऊपर इंडेक्स बना है हमने। सेकेंड इज अ कंपाउंड इंडेक्स। सो कंपाउंड इंडेक्स में आप देखोगे 2 कॉलम्स वी हैव एडेड, तो 2 कॉलम को मिला के इंडेक्स बनाया है, एक से ज्यादा कॉलम है, जिसमें हमने बताया कि फर्स्ट कॉलम जो है डेट ऑफ बर्थ, वो हम बनाने वाले इंडेक्स असेंडिंग ऑर्डर के ऊपर, एंड जिप कोड जो है वो बनाने वाले हम डिसेंडिंग ऑर्डर के ऊपर. सो यू कैन यूज अ like more than one column you can add in an index, which is called as the compound index. Then third one is a unique index, where you have to specifically give the value that unique colon true. तो जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया db.stud.create index, ब्रैकेट में डाल दिया कौन से कॉलम पे आपको इंडेक्स बनाना है, कौन से टाइप का इंडेक्स बनाना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, एंड आफ्टर कॉमा वी हैव रिटर्न यूनिक कोलन ट्रू. तो हमने बता दिया कि रोल नंबर जो है इसके ऊपर इंडेक्स बनाओ, लेकिन रोल नंबर की वैल्यू हमेशा यूनिक रहेगी जब कोई भी रो या डॉक्यूमेंट यूजर इंसर्ट करेगा. सो सेम रोल नंबर वो रिपीट नहीं कर सकता. एंड लास्ट इज अ स्पार्स इंडेक्स. सो वेरी सिंपल, वेरी सिमिलर टू लाइक दिस, खाली यूनिक के बजाय यहाँ पे आपको लिखना है स्पार्स कोलन ट्रू. जब आपको इंडेक्स जो है उसकी साइज आपको अगर रिड्यूस करनी है, दैट टाइम यू कैन यूज सच काइंड ऑफ इंडेक्स. तो सेम हर एक कमांड जो है आप अलग वे में लिख सकते हो. इंस्टेड ऑफ ओनली क्रिएट इंडेक्स, यू कैन राइट डाउन अ इंश्योर इंडेक्स. कोई भी एक ही आपको फाइनल जो प्रैक्टिकल रहेगा एग्जाम, उसमें कोई एक भी किया तो चलेगा. मतलब आइदर गो विथ क्रिएट, आइदर गो विथ इंश्योर. जो भी आपने इंडेक्सेस क्रिएट की, अगर आपको उसका इंफॉर्मेशन चेक करना है, सो यू कैन लाइक जस्ट चेक द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द इंडेक्स. तो यहाँ पे लिखना है डीबी डॉट कलेक्शन नेम, जैसे स्टूड हो गया डीबी डॉट स्टूड डॉट गेट इंडेक्स या फिर गेट इंडेक्सेस. तो उस पर्टिकुलर टेबल के ऊपर, कलेक्शन के ऊपर जितने भी इंडेक्स आपने बनाए होंगे, वो सब की इंफॉर्मेशन वो क्या करता है, आपको शो करके बताता है. और यहाँ पे अगर आपको उसका स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करना है, so it will give you the statistics just by giving this get index dot stat command. जैसे आप लोगों ने whatever the index you have created, you can also drop the index just by putting the command db dot collection name dot drop index and by providing the name of index. जैसे अगर यहाँ पे मैंने simple index का कुछ भी नाम ही नहीं दिया है, तो जितने भी index create किए होंगे स्टू टेबल पे, all index it will automatically drop. And you want, if you want to delete a particular index, so after this, in this round bracket you have to provide the details of that index, कि जैसे जो भी इंडेक्स है जो मैंने नेम कॉलम के ऊपर बनाया है असेंडिंग ऑर्डर वाला, अगर ये आपको फाउंड होता है तो उसको ही क्या करना है, ड्रॉप करना है. ऐसे हम डेटाबेस को बताते हैं. सो यू कैन ड्रॉप द इंडेक्स आइदर बाय giving a particular information, or without giving any information it is going to delete all the indexes. Now, like for what type of query, which kind of index you have to create. जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बताती हूँ कि अगर ये टाइप का क्वेरी है, जैसे क्वेरी क्या है, db डॉट स्टूड डॉट फाइंड वेयर रोल नंबर इक्वल टू 2. तो यहाँ पे हमने फाइंड में कंडीशन क्या डाली है, रोल नंबर के ऊपर. ओके, इसका मतलब जिसका रोल नंबर 2 है उसका इंफॉर्मेशन हमको सर्च करके चाहिए. तो जब ये डेटा वो सर्च करेगा स्टू टेबल में, तो ये सर्चिंग का आउटपुट फास्ट मिलना चाहिए हमको. तो ऐसे टाइप की क्वेरी के लिए हमने इंडेक्स किसके ऊपर बनाना चाहिए, रोल नंबर ये कॉलम के ऊपर इंडेक्स बनाना चाहिए. तो इफ इन योर फाइंड, देखो ये मैंने बहुत सारे 3 वेरिएशन बताया. अगर आपकी फाइंड में कंडीशन के अंदर अगर आप रोल नंबर ले रहे हो, ओके, सो दैट टाइम यू कैन क्रिएट अ इंडेक्स ऑन रोल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर. अगर आपके फाइंड में सबसे ज्यादा बार जो कॉलम आ रहा है वो अगर एज आ रहा है, तो आपने क्या करना चाहिए, स्टूड टेबल पे इंडेक्स क्रिएट करना चाहिए एज कॉलम के ऊपर. सो आपको ये पता करना है, अगर आपने कोई टेबल क्रिएट किया है इन अ रियल टाइम, आई एम जस्ट टॉकिंग, इफ यू हैव क्रिएटेड अ collection in suppose for any of the company, and you have to find out like what kind of searching queries are mostly coming to that collection.
अगर सर्चिंग क्वेरीज जो है ये पर्टिकुलर किसी एक कॉलम के ऊपर सबसे ज्यादा कंडीशन जो है वो ज्यादा अप्लाई हो रही है, वेयर कंडीशन, तो आपने उस कॉलम के लिए इंडेक्स बनाना चाहिए ताकि आपका आउटपुट जो है वो फास्टर वो सर्च करके दे सकता है. ओके, सो फर्स्ट विल कंप्लीट द इंडेक्सिंग पार्ट एंड देन विल स्टार्ट विथ द एग्रीगेशन पार्ट. Okay, so we have started a MongoDB. Okay, so our database name is DB1. Okay, we have this many collections. Suppose I just want to see the employee database. So db dot amp dot find. Okay, no data is there. I'm using customer. Okay, in customer there are some information available. Okay, तो customer में जैसे columns कौन से available है हमारे पास? Customer ID column is there. Second, customer name column is there. Okay, apart from that address and hobbies are there, but mostly the column which is coming is customer ID and customer name. तो हमने decide किया कि हमको जो index बनाना है वो suppose customer ID के लिए कस्टमर ID के लिए हमको इंडेक्स क्रिएट करना है. सो वी विल यूज लाइक db डॉट कस्ट डॉट क्रिएट इंडेक्स राउंड ब्रैकेट एज इट इज अ फंक्शन. ओके, और हमने बोल दिया कौन से कॉलम के लिए बनाना है, दैट इज कस्टमर ID के लिए बनाना है एंड कोलन. असेंडिंग ऑर्डर में बनाना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाना है, तो हमने बोल दिया कि असेंडिंग ऑर्डर में बनाना है. ओके, तो यहाँ पे हमारा इंडेक्स जो है उसने बोला कि इंडेक्स इज क्रिएटेड एंड नाउ आई वांट टू सी द इंफॉर्मेशन ऑफ क्रिएटेड इंडेक्स. सो हमने ले लिया सपोज db डॉट कस्टमर डॉट get indexes. Okay, so very first command here is very simple. This command is used when you want to create an index, जिसमें आपको db डॉट कलेक्शन का नाम जिसके ऊपर इंडेक्स क्रिएट करना है, उस कलेक्शन में कौन से कॉलम के ऊपर इंडेक्स करना है एंड असेंडिंग या डिसेंडिंग. वन है तो असेंडिंग रहेगा. ओके, जो भी हमने इंडेक्स क्रिएट किया है उसकी इंफॉर्मेशन अगर हमको शो करनी है तो यू हैव टू यूज अ कमांड db डॉट नेम ऑफ कलेक्शन डॉट गेट इंडेक्सेस. तो यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन दी. इफ यू सी द इंडेक्स दैट वी हैव क्रिएटेड इज ऑन कस्टमर ID. ओके, जो आपको ये सेकेंड पार्ट में दिख रहा होगा. ओके, हियर वी इंडिकेट द वर्जन. सो हियर द वर्जन ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ इंडेक्स इट इज यूजिंग इज v is 1. ओके, कौन से की के ऊपर हम लोगों ने इंडेक्स बनाए यहाँ पे, तो कस्टमर ID के ऊपर इंडेक्स बनाया है. तो उसने बोल दिया कि कस्टमर ID के ऊपर बनाया है और असेंडिंग में बनाया है, डिसेंडिंग में तो हमने 1 वैल्यू दिया था यहाँ पे. सो 1 वाला वैल्यू आ गया कि हमने बताया वी हैव क्रिएटेड इंडेक्स ऑन की कस्टमर ID विथ अ वैल्यू 1 मींस इन अ असेंडिंग ऑर्डर. ओके, हमने कोई नाम नहीं प्रोवाइड किया. जब हमने इंडेक्स को क्रिएट किया तो MongoDB खुद उस इंडेक्स को नाम देता है. तो उसने नाम दे दिया, कॉलम का नाम ले लिया उसने एंड अंडरस्कोर उसने वैल्यू क्या दे दिया, 1 दे दिया. ns इंडिकेट द नेम स्पेस. नेम स्पेस मीन्स for which database and table this index is created. So he told that for database db1 in that the collection name is customer and for this table this particular index is created on column customer ID and in a ascending order. इसके अलावा और एक एंट्री आई है जो हमने तो कुछ क्रिएट नहीं किया, ऑटोमेटिक आई है. ओके, सो हियर यू कैन सी वर्जन इज सेम, namespace is same, but here the key is underscore id. ये ऑटोमेटिक MongoDB खुद बनाता है जब आप कोई टेबल क्रिएट करते हो और आप कोई रो को इंसर्ट करते हो. तो जैसे आप कोई रो इंसर्ट करते हो MongoDB ऑटोमेटिकली क्रिएट वन इंडेक्स ऑन दैट पर्टिकुलर टेबल अंडरस्कोर ID ये कॉलम के ऊपर, क्योंकि ये कॉलम ऑटोमेटिक MongoDB ऐड करता है हर डॉक्यूमेंट के लिए और हर एक डॉक्यूमेंट का ID जो होता है ये यूनिक होता है.
So it create the index automatically on underscore id with an ascending value, और वो खुद उसको क्या करता है, नाम देता है. अगर आप ऐसे कोई भी टेबल के ऊपर अगर आप चेक करोगे जिसमें आपने कुछ वैल्यूज इंसर्ट की है, तो ऑटोमेटिकली वहां पे आपको दिखाई देगा कि इंडेक्स जो है वो क्रिएट उसने कर दिया है. सपोज आई वांट टू क्रिएट एन कंपाउंड इंडेक्स, कि मुझे दो कॉलम को मिला के इंडेक्स बनाना है कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम के लिए. सो व्हाट क्वेरी यू कैन ऐड हियर, सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया कि कस्टमर आईडी जो है उस पे मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर का इंडेक्स बनाना है, कॉमा सेकेंड कस्टमर नेम जो है, ओके सी जो है वो कैपिटल में है. सो हियर आई हैव टू क्रिएट एन असेंडिंग ऑर्डर इंडेक्स. ओके, तो यहाँ पे इंडेक्स हमारा क्रिएट हो गया है. And now when I want to show the information, so you can see in the index table the information first given is for id field, second which is given by जो हमने second वाला बनाया था customer id, अभी हम लोगों ने बनाया है customer id plus c name के लिए. तो थर्ड वाला इंडेक्स की इंफॉर्मेशन उसने बताया, जिसमें उसने बताया कि कौन से की के लिए बनाया है, कस्टमर आईडी के लिए बनाया विथ -1 वैल्यू, कस्टमर नेम विथ 1 वैल्यू, नेम उसने ऐसा बना दिया id _ -1 _ c name _ 1. okay, and name space is as it is. so here likewise they can create an index. अगर अभी हमको कोई इंडेक्स को ड्रॉप करना है, so db.stud.drop index. ओके, और मुझे कोई पर्टिकुलर इंडेक्स ड्रॉप करना है, पूरा के पूरा इंडेक्स ड्रॉप नहीं करना है, ये जो है CID वाला वो मुझे ड्रॉप करना है खाली. तो यहाँ पे मैंने डाल दिया CID : जिसकी वैल्यू क्या थी यहाँ पे 1. तो ये मैंने डाल दिया कि CID जहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में दिखेगा इंडेक्स उसको ही ड्रॉप करो. ये वाइट इज बराबर है ड्रॉप इंडेक्स. Okay, we have to check out why it is not working. Ma'am, Yes. database name cust आहे. हाँ, yeah. Thank you. Sir, table name is, collection name is customer. Okay, why still it is not taking? मैम. Yes. मैम कर्ली ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट चेक करिए एक बार. Yes, right. Okay, so here our index is drop, where it have given that index is drop. Okay, जैसे हम लोग वापस इसका इंफॉर्मेशन चेक करने जाएंगे गेट इंडेक्सेस के बाद, so whatever the index value we have given for dropping here, कि हमने बोला कस्टमर आईडी जहाँ पे भी असेंडिंग ऑर्डर में मिलेगा उसको ड्रॉप करो. So you can see only the two indexes now available. One is with _id1 and second is with CID -1 and CNAME 1. So वो वाला इंडेक्स क्या हो गया यहाँ पे ड्रॉप हो गया. If you want to drop the all index at a time, so you can also drop that. अगर मुझे कंपाउंड इंडेक्स को ड्रॉप करना है, ओके, जिसमें हमने बताया कि CID की वैल्यू जो है -1 में है, उसको ड्रॉप करो. एंड जिसमें कस्टमर नेम की वैल्यू क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है, जस्ट ड्रॉप दैट इंडेक्स. ओके, सी नेम इज इन अ कैपिटल. Okay, as it is a case sensitive, so you can see that both the indexes are deleted. Now we will try to delete this underscore id and we will see does our MongoDB is giving us a permission to drop that index. तो index का नाम है underscore id : value है 1. okay,
So यहाँ पे उसने क्या दिया, can't drop underscore ID index because this is a index which is created by MongoDB and we don't have a authority to remove that index. Now also you can create an index of unique value. पहले हम चेक करेंगे कि जो हमारा टेबल है इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं है ना कस्टमर आईडी के लिए. 1 2 3 4 5 6 ओके. So here we are using the customer ID with value 1, comma, unique colon true. Okay. So see here, he is not giving authority to us to create a unique index on customer ID. Can anybody tell like what message it have given, like why it is not allowing us? मैम उसमें डुप्लीकेट नंबर होंगे पहले से. नहीं, हमने अभी चेक किया डुप्लीकेट नंबर नहीं है. दूसरा रीजन यहाँ पे उन्होंने दिया है हमको. दूसरा रीजन क्या दिया है, डुप्लीकेट की, लेकिन कौन सी की डुप्लीकेट है, नल वैल्यू है. मतलब कुछ तो डॉक्यूमेंट ऐसे है उसमें, जैसे अगर हम चेक करते हैं. ओके तो यहाँ पे हमने कस्टमर आईडी 1 दिया है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे कस्टमर आईडी 5, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कस्टमर आईडी है ही नहीं, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके लिए नल हो गई. यहाँ पे भी कस्टमर आईडी नहीं है, इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या हो गई, नल. तो नल भी अगर दो जगह पे होता है स्टिल इट इज नॉट अलाउइंग अस. ओके तो अगर हम क्या करते हैं, वो दोनों रिकॉर्ड्स को डिलीट करने का ट्राई करते हैं. तो हमने डाल दिया db डॉट and we have given like where cname colon abc and second where cname is rishi. Okay so now we have some rows available where everyone is having a unique customer id. Now we will try to create that index. Okay now there is no error message, मतलब हमारा यूनिक जो है इंडेक्स क्रिएट हो गया है. अब हम एक रो ऐड करने का ट्राई करेंगे कस्टमर टेबल में, जिसमें हम कस्टमर आईडी क्या करेंगे, डुप्लीकेट देके देखेंगे कि हमारा जो इंडेक्स बना है इट इज वर्किंग और नॉट. सो वी विल यूज हियर db डॉट कस्टमर डॉट insert and where we are putting customer id as 1, as 1 is already available. Okay and okay so you can see here okay insert ka spelling. So here when I'm trying to insert the customer id with a value 1 which is already available in a table, it is giving a message as error message duplicate key error. Okay duplicate key error for index db1 dot customer for cid1, जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था cid1 के लिए यूनिक. तो उसने बताया कि ये जो वैल्यू है आप जो देना चाहते हैं ऑलरेडी अवेलेबल है, so it is not allowing us. If I am trying to insert with a customer id 10, okay so the value is inserted. So when the value is available in a table and you are trying to insert the same value, it is not going to allow you. So it is very similar to your unique key or primary key of your SQL. So likewise you can create that. I hope indexing is clear to you, how to create an index, single index, compound index, unique index, how to drop an index, how to check the like details of index that you have created by giving a command. So these are the three main command: creating an index, dropping an index, and checking the like information of whatever the index you have created on your table. Now the next part of this practical is any question from your side, students? So second part is aggregation. So aggregation is already, you know, when you want to aggregate some rows and you want to perform some
function on that aggregated or grouped data. So here, like for the aggregation, you have to use the command which is called as db.collectionName dot, and you have to write down a function name is that is aggregate, and inside that aggregate function you have to write down the aggregate queries. So these are the different methods of aggregate function which are available that you can use. So you know in SQL you have studied sum, average, mean and max. So apart from these four, the two extra methods they have given, that is first and last. Now count is not there क्योंकि count ये एक function है MongoDB के अंदर जो हमने देखा था कि db.stud.find और उसके साथ हम .count यूज करते हैं. So count is a different function, not a aggregate operation. लेकिन SQL में count ये aggregate operation के अंदर आता है. But in MongoDB count is a different function. But in aggregation, you can use this type of commands here. Okay, and apart from that, apart from grouping a data, you can use this different type of inbuilt function like project, match, group, sort, keep, limit, unwind. बहुत सारी चीजें. It's a very huge practical actually, but हमने उसको थोड़ा सा limited कर दिया है. सिर्फ मेन जो चीजें उसको हमने इसमें हाईलाइट किया ताकि आपको एटलीस्ट एग्रीगेशन क्या होता है और उसको कैसे यूज करना है वो आपको समझ में आए. ओके, फॉर दैट आई हैव टू क्रिएट वन कलेक्शन लाइक प्रोडक्ट. यहाँ पे शायद ऑलरेडी प्रोडक्ट नाम का था कोई तो डेटाबेस. आई जस्ट चेक आउट. ओके, सो यहाँ पे हम इसको प्रोडक्ट 1 नाम देते हैं. ओके, सो हियर आई एम क्रिएटिंग अ वन कलेक्शन नेम एज अ प्रोडक्ट 1. ओके, एंड आई एम इंसर्टिंग सम वैल्यूज. जैसे यहाँ पे मैंने हर एक रो में, अगर आप देखोगे हर एक डॉक्यूमेंट जो है जितने में एक साथ 8 से 10 वैल्यूज इंसर्ट कर रही हूँ. सो यू कैन इंसर्ट अ मल्टीपल डॉक्यूमेंट एट अ टाइम. खाली इंसर्ट किया तो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में स्क्वायर लगाना है और एंडिंग में स्क्वायर लगाना है और हर एक रो के बाद कॉमा देना है. तो आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड एट ए टाइम इंसर्ट कर सकते हो. तो यहाँ पे मैंने 3 कॉलम्स आई हैव यूज्ड हियर, आइटम, अमाउंट एंड कस्टमर. तो कुछ आइटम्स जो है वो मैंने रिपीटेड किए हैं, कुछ कस्टमर्स के नाम में मैंने रिपीट किए ताकि आपको एग्रीगेट, क्योंकि एग्रीगेशन में कुछ तो कॉमन होगा तो ही आप उसको एग्रीगेट कर सकते हो, ग्रुप में डाल सकते हो. सो फर्स्ट विल क्रिएट दिस कलेक्शन इन अ MongoDB. ओके, सो ये इंसर्ट होने के बाद हम इसको एक बार फाइंड करके देखते हैं. db.product1.find. okay, so here you will find that the values are stored here automatically. underscore id आ गया है हर एक के लिए. आइटम, वो आइटम का कुछ अमाउंट और कस्टमर का नाम. आप देखोगे कस्टमर के नाम काफी बार मैंने कुछ जगह पे रिपीट किए हैं अलग अलग वैल्यूज के लिए. Okay, now we'll see how to aggregate it. So I'll just you can use a 3 different thing here. Like whenever you want to aggregate anything, you can use a group function, you can use a match function, you can use a sort, project, wind, unwind. बहुत सारे functions है, लेकिन सबसे main हम जो function use करने वाले हैं that is a group function. Okay, so I will first write a first query, first command, and उसको कैसे लिखना है और उसका मीनिंग क्या है वो हम देखते हैं यहाँ पे पहले. Okay, so here the command which I have used here is db.product1. जो भी आपका कलेक्शन का नाम है वो यूज किया. डॉट, द फंक्शन आई हैव यूज्ड हियर इज अ एग्रीगेट फंक्शन. सो db.product1.aggregate. ओके, एग्रीगेट जब करना है तो आपको ग्रुप बनाना है, तो इसके लिए राउंड ब्रैकेट हमेशा याद रखो. इसका सीक्वेंस होता है एग्रीगेट के बाद राउंड ब्रैकेट, then it comes square bracket, and then it come curly bracket. Again at the end it come first curly bracket,
देन स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन राउंड ब्रैकेट। तो ये हमेशा आपको सीक्वेंस याद रखना है जो डॉट एग्रीगेट के बाद आएगा। तो ये 3 हम लोगों ने क्या किए यहाँ पे, जो भी ब्रैकेट्स जो है वो वी हैव एडेड। आफ्टर दैट द फंक्शन वी आर यूजिंग इज अ डॉलर ग्रुप। अब कौन से कॉलम के ऊपर आपको ग्रुप बनाना है? नाउ यू कैन सी दैट देयर आर डिफरेंट कॉलम्स विच आर अवेलेबल। वन इज आइटम, second is amount, and third is customer. So here I am making a group of customer। जहां जहां पे उसको कस्टमर के लिए नेम सिमिलर दिखेंगे, जैसे माइक कितनी बार है, 1 2 3 टाइम, तो ये तीनों रोज को एक ग्रुप में डाल देगा। देन किरण जो है 1 2 एंड सपोज 3 टाइम, तो इसको ग्रुप में डालेगा। तो हमको ग्रुप बनाना है कस्टमर कॉलम के लिए, तो हमने बोल दिया डॉलर ग्रुप कोलन। लेकिन आप डायरेक्टली कस्टमर नहीं लिख सकते हो। यू वांट टू टेल दैट इज माय मेन फील्ड ऑन विच यू आर मेकिंग अ ग्रुप। इसके लिए कॉलन के बाद हम बोलते हैं कि मेन जो आईडी रहेगा ग्रुप के लिए वो रहेगा डॉलर कस्टमर। हमेशा कॉलम का नाम डबल कोट में डाल के उसके आगे डॉलर लगाना पड़ता है फॉर व्हेन यू वांट टू मेक अ ग्रुप। अब ये इससे हमारा कस्टमर का ग्रुप बन गया। जो सिमिलर नाम के कस्टमर है वो एक ग्रुप में आ गए। अब ग्रुप आ गया है, अब उस ग्रुप पे आपको क्या एक्शन परफॉर्म करना है? ओके, जैसे माइक के रिलेटेड हमने बोला कि 3 रोज आर देयर, 3 एंड 4 रोज आर देयर। अब ये चारों रोज का एक ग्रुप बना है, उस ग्रुप पे आपको क्या एक्शन परफॉर्म करना है? तो हमने बोला कि उस ग्रुप के ऊपर हमको क्या एक्शन परफॉर्म करना है? वी वांट टू मेक अ सम ऑफ दैट रोज। लेकिन कौन से कॉलम का सम करना है? अमाउंट का सम करना है। तो जैसे ये एक ग्रुप बन गया जिसमें माइक की फर्स्ट रो आ गई, देन ये सेकेंड रो आ गई माइक की, देन ये थर्ड रो आ गई, एंड दिस इज अ फोर्थ रो। तब इसमें जो जो अमाउंट आया, अमाउंट कितना आया है? 60 रुपीज, 40 रुपीज, देन अगेन 60 रुपीज एंड 40 रुपीज। तो जितने भी अमाउंट आया है उन सबका क्या करो, अगेन यू कैन सी अमाउंट के आगे भी मैंने डॉलर लिखा है। अब इसके ऊपर मैं कौन सा फंक्शन अप्लाई कर रही हूँ? डॉलर सम फंक्शन। ओके, और जो आउटपुट आएगा इस सम का, उस आउटपुट के लिए मैंने एक नाम दे दिया है उस आउटपुट को एज अ टोटल। सो विल सी व्हाट विल हैपन व्हेन विल रन दिस कोड। सो लेट्स चेक आउट द आउटपुट। तो उसने क्या किया, यहाँ पे हमने नाम दिया था कि कस्टमर जो है, हर कस्टमर के लिए हमने उसको क्या बना दिया है? आईडी, यानी मेन फील्ड बना दिया। तो फर्स्ट अंडरस्कोर आईडी आ गया, फर्स्ट वैल्यू उसको यहाँ पे जैसे टॉम की एक ही वैल्यू मिली थी तो वो बना दिया। सेकंड उसने माइक की है 3 से 4 वैल्यू, वो बना दी। और अब जितने भी वैल्यूज है, जैसे मैंने बताया था कि माइक के टोटल 4 रोज आर देयर। Okay, one with 40 rupees, second with 60 rupees, then next with 40 rupees and again with 60 rupees। तो अगर इसका एडिशन करते हैं हम चारों का तो 200 आता है। तो उसने बताया कि माइक जो कस्टमर है उसने टोटल परचेसिंग कितना किया है? 200 रुपीज का। देन नेक्स्ट सपोज देविका नाम का जो कस्टमर है उसने टोटल परचेसिंग कितना किया हुआ है अब तक? 340 रुपीज का किया हुआ है। सो ग्रुप बनाया, ग्रुप के ऊपर उसने क्या किया? अमाउंट जो है उसका एडिशन किया। अब मुझे लग रहा है कि मुझे ये पता करना है कि कितने आइटम्स उसने परचेस किए। ओके, टोटल अमाउंट पता चल गया, कितने आइटम्स उसने परचेस किए। तो अभी यहाँ पे जाके डॉलर सम में आप यहाँ पे डाल दो 1। सो इट इंडिकेट दैट कि जितनी बार भी वो नाम मिलेगा, सिमिलर नाम मिलेगा, उतनी बार +1 +1 +1 करते जाओ। ओके, सो यू डोंट हैव टू यूज अ डबल कोट हियर। ओके, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि I have not used any column here. Instead of that, I have given a 1. तो हमने बोला सम करो 1 वैल्यू के साथ। तो उसने चेक किया कि टॉम, अब उसने चेक किया कि पूरे टेबल में जो है टॉम ये कितनी बार आया है? टॉम 1, इसके बाद टॉम एक बार भी नहीं आया है। तो टॉम ये बताया कि एक ही बार इसने अब तक परचेसिंग किया है। ओके, सेकेंड माइक जो है इसने 4 टाइम परचेसिंग किया है, देविका जो है इसने 3 टाइम। सो हर एक कस्टमर ने कितनी बार परचेसिंग किया है वो बताया। इसमें हर कस्टमर ने कितने अमाउंट का परचेसिंग किया है वो उसने यहाँ पे आपको क्या किया, लाइक दे हैव जस्ट गिवन इट। सो ऐसे ही सम के बजाय हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? वी कैन ऑल्सो यूज अ वैल्यू एज हियर एवरेज।
सो एवरेज में उसने बताया कि टोटल एवरेज में उसने अब तक कितना अमाउंट जो है परचेस किया, मतलब अगर वो 4 बार आया है, जैसे माइक जो है ये कितनी बार आया है, टोटल हमारे शॉप में 4 टाइम आया है, और टोटल परचेसिंग उसने कितने रुपीस का किया है, 200 रुपीज का। तो ऑन एन एवरेज हर विजिट पे वो कितने टोटल अमाउंट का परचेसिंग करता है, 50 रुपीज का परचेसिंग करता है। तो इससे आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा परचेसिंग कौन करता है, सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है शॉप में। सो लाइकवाइज जस्ट बाय मेकिंग अ एग्रीगेट फंक्शन यू कैन गिव द आंसर टू दिस। अब सेम वाला एग्जाम्पल, okay, instead of customer now I am using here item, सेकेंड कॉलम यूज किया मैंने आइटम, यानी हर आइटम टोटल, हर आइटम का टोटल सेलिंग कितना हुआ ये हमको पता चलेगा। मतलब हमने क्या किया, हर आइटम, जैसे पिज्जा है, ये पिज्जा जितनी बार दिखेगा उसका ग्रुप बनाएगा, और कितनी बार वो पिज्जा सेल हुआ है उसकी जितना भी अमाउंट है उसका क्या किया उसने, ग्रुप बना दिया। सो हियर यू कैन सी दैट पेस्ट जो है टोटल इसका सेलिंग हुआ है 240 रुपीज का, गिट